Welcome to the next edition of Current Affairs videos. Today, we will be discussing once again some very important current affairs topics, different subjects related to different subjects that are very, very important for the examination point of view. All right, for both the Indian students. So now, let's go ahead and start without any further delay. Let's see what topics we are going to discuss today. First topic is regarding Lokpal. There has been a very sharp drop in the complaints that are filed in Lokpal. Okay. Then, regarding the Rashtriya Vigyan Puruskar, the awards given for scientific achievements by the central government, and then the C2S scale model, which is public from scientific IT load. All right. Let's start. First topic. Sharp drop in the complaints that are received by the Lokpal. Alright. So now see, what is Lokpal? Lokpal is India's statutory anti-corruption body. Independent. Independent means that it does not come under the influence of the government, just like the judiciary. Our judiciary is independent, is not influenced by the executive or the legislature. Similarly, the Lokpal is an independent body that is not influenced by the executive or the legislature in any way. Alright? It's a statutory body. Statutory means that it is backed by a statute. The word statute means a law. Alright? So anything which was made by a law, by passing a law, such bodies are statutory bodies. So Lokpal was formed by the Lokpal Bill, which became the Lokpal Act. Now the Act is law. So the Lokpal was created by a law. That is why it's known as a statutory body. And what is its function? It is an anti-corruption authority. It keeps a check on the corruption at any level of the government. All right, whether it is the legislature or executive or a regional bureaucracy or wherever, it keeps a check on corruption. All right. Now, when was it established? It was established under the Lokpal and Lokayuktas Act of 2013. As I said, it was enacted by law, an act. Okay? And it came into force in January. The act was passed in 2013, but it came into force from January 24. Alright? Now, the first Lokpal. When was the first Lokpal appointed? The first Lokpal was appointed in March of 2019. Alright? And who was the first Lokpal, the overseer of anti-corruption? It was Justice Pinaki Chandra Bose. Okay? Now, in the year 2022 to 23, this time frame, there were approximately 2,469 complaints of corruption that were lodged with the Lokpal. Alright? But in the current year, 2024 to 25, it has dropped from 2,469 to only 233. This data is still September of 2020. Alright. From 24 to September 25, to September 25, it has dropped to 233 only. It's a very big drop. Okay? Since its inception means since the time it was made, how many complaints have been received by the Lokpal? It has received 6,955 complaints till date. Created. Okay? Out of that, inquiries were ordered in 289 of those complaints. Okay? And out of the inquiries in 289 complaints, punishment दिया गया only in 7 of those cases. जब से बनाया तब से almost 7,000 कंप्लेंट आ चुकी है 6,955 उसमें से इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ 289 में 289 में सजा मिला है बस 7 केस ठीक है recent controversy जो हुआ था that happened for the tender for 7 BMW cars for Lokpal office कि Lokpal office के लिए 7 BMW गाड़ी का टेंडर निकला था and people found something shady in that and hence there was a controversy regarding that. ये Lokpal office के लिए 7 BMW का क्या है और ये कैसा आना है ठीक है. Now let's look at the historical background Lokpal. ठीक है
अब ये लोकसभा का सॉरी ये लोकपाल का आइडिया, ये आइडिया आया कहां से? देखो, इन द ईयर 1963 अब डिबेट वाज गोइंग ऑन इन द लोकसभा ऑन करप्शन, करप्शन को कैसे रोका जाए। उस डिबेट के दौरान लोकपाल का आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज प्रपोज्ड इन द लोकसभा इन 1963। ठीक है, उसके बाद लोकपाल को लाने के लिए बहुत सारे बिल्स लाए गए बिटवीन द ईयर 1968 और लोकपाल लाने के लिए बहुत सारे बिल्स लाए एंड द बिल्स फेल्ड, सेवरल बिल्स फेल्ड। ठीक है, उसके बाद साल 2011 में, if people remember, we were there, we were there, we were able to understand what was going on in the debate. If you would have seen Anna Hazare, he had taken out a huge rally and protest in the year 2011, an anti-corruption rally and anti-corruption protest. Okay? And what was the protest for? The protest was for the passage of the Lokpal Act of 2013. इन्हें लोकपाल में पास करो, नहीं तो आप प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब लोकपाल क्या इन्वेस्टिगेट करता है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, द एमपीज और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों के अगेंस्ट जो भी करप्शन के चार्जेस आते हैं, उन करप्शन चार्जेस को लोकपाल इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द लॉ अंडर विच लोकपाल पनिशेस पीपल और एडवाइजर टू पीपल? इट इज द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। Lokpal works under this act. Lokpal was made by the Lokpal Act of 2013, but the working of the Lokpal is governed by, it works under the Act of Prevention of Corruption Act, the PCA of 1988. Okay? It is like a quasi-judicial body. Why am I calling it a quasi-judicial body? क्योंकि देखो कोर्ट क्या करता है? जुडिशियरी कुछ गलत हो रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, उस पर इंक्वायरी करेगा, केस चलाएगा, सजा देगा। ये तो सेम काम कर रहा है ना, केस में इंक्वायरी करेगा, केस में दोनों साइड से सुनेगा, देखेगा करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ, होगा तो प्रोसिक्यूट करेगा, सजा देगा। काइंड ऑफ कोर्ट का ही काम कर रहा है, बट ये कोर्ट है तो नहीं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्वासी जुडिशियल। इट वर्क्स लाइक जुडिशियल अथॉरिटी एंड क्वासी मींस इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज। ठीक है, सो क्वासी जुडिशियल एक्ट्स लाइक अ जुडिशियल बॉडी बट एक्चुअली इट इज नॉट द जुडिशियल बॉडी। ठीक है, और उसके पावर्स क्या क्या है? सर्च का पावर, सर्च कर सकता है कहीं भी, सीजर का पावर, उसको अगर लगता है कि कोई चीज गलत किसी के पास है, वो उसको सीज कर सकता है, लेके जा सकता है। और सामान का पावर है, सामान भेज सकता है किसी को कि आगे पेश हो जाए आपके सामने, तुम्हारा भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर तुमको कोई गवा रहा है तो पर्टिकुलर रीजन। मूविंग ऑन, लेट्स लुक एट द कंपोजिशन ऑफ लोकपाल। लोकपाल में होते कौन कौन और लोकपाल का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ठीक है, लोकपाल एज ए चेयरपर्सन। ठीक है, अब लोकपाल का चेयरपर्सन कौन बनता है? आइदर एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोकपाल का चेयर बनता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज लोकपाल का चेयरपर्सन बनता है। ठीक है, हु इज एलिजिबल टू द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल? a retired CJI of India or any other retired Supreme Court judge। ठीक है, कितने मेंबर्स हो सकते हैं? अप टू 8 मेंबर्स, मतलब लोकपाल का है मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, 8 हो या 6 हो, ठीक है, जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें से 50% शुड बी जुडिशियल मेंबर्स। मतलब जितने मेंबर्स होंगे उसमें से आधे लोग वे शुड बी फ्रॉम द जुडिशियरी। ठीक है, यहाँ भी देयर इज अ 50% रिजर्वेशन। ठीक है, लोकपाल में जितने सीट्स है उसमें 50% है रिजर्व। ठीक है, फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज एंड विमेन। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी, ये सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट and the president will work on the recommendations of the selection committee to appoint these members। ठीक है, selection committee में कौन कौन होता है? The selection committee has the prime minister, the speaker, ठीक है, it has the leader of opposition, ठीक है, it has a nominee who is nominated by the CJI, a CJI nominee,
And an eminent jurist. An eminent jurist is someone who is an expert in the field of law and judgment. ठीक है, वो एक्सपीरियंस है. और टेन्योर क्या है कि जो लोकपाल में अपॉइंट होकर जाता है वो कितने साल तक लोकपाल में रहता है? आइदर 5 साल के लिए रहेगा या फिर 70 इयर्स की एज तक रहेगा. व्हिचएवर इज अर्ली. मान लो 60 या 67 इयर्स का आदमी लोकपाल में अपॉइंट होगा, 5 साल में उसको 5 साल लगेंगे और 67 से 70 में उसको 3 साल लगेंगे. So which is coming earlier? 70 is coming earlier. So he will retire at 70. So the retirement from Lokpal happens at either after 5 years of tenure or at the age of 70, whichever comes earlier. ठीक है? And अगर एक बार लोकपाल में अपॉइंट हो गए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. एक बार लोकपाल में चले गए, रिटायरमेंट हो गए, दोबारा लोकपाल में नहीं जा सकते. ठीक है? एक और चीज, अगर उसको अपॉइंट किया है लोकपाल में, उसको हटा भी कर सकते हैं. तो हाउ डू रिमूव? ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट. रिमूवल इज आल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट. बट इज इट द प्रेसिडेंट्स ओन चॉइस? नो, इट इज नॉट द प्रेसिडेंट्स ओन चॉइस. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी. द प्रेसिडेंट रिमूव्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोकपाल का मेंबर है ही हैज अ केस ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर, गलत काम कर रहा है, गलत टाइप से कंडक्ट कर रहा है लोगों के साथ, या फिर इनके कैपेसिटी कि ये काम करने लायक ही नहीं, इससे ये काम नहीं होगा. ठीक है? इन दीज टू केसेस द सुप्रीम कोर्ट विल रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट, देन द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू रिमूव द गिवन मेंबर. ठीक है? लोकपाल के काउंसिल में इश्यूज क्या है? देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपको ऑलरेडी शायद समझ में आ गया है सर, डिस्पोजल रेट बहुत कम है. कितने फाइल में लोकपाल में 2019 से लेके ये अभी तक, सॉरी 2005 जनवरी 2014 से लोकपाल इफेक्ट में आया है. मार्च 2019 को फर्स्ट लोकपाल केम इनटू पावर. ठीक है, व्हाटएवर. तब से लेके अभी तक कितने केसेस आए? 6955, ऑलमोस्ट 7000. बट कितने सारे केसेस में इंक्वायरी कितने केसेस में देखे? ओनली 259. नॉट इवन 500. The number is so less. ठीक है? प्लस ट्रांसपेरेंसी के कुछ इश्यूज हैं. ट्रांसपेरेंसी इश्यूज आ रहा है कि सिंस द ईयर 2021 to 22 लोकपाल ने कोई एनुअल रिपोर्ट सबमिट या रिलीज नहीं किया है. ये करता था पहले, पर अभी आफ्टर 2021 to 22 आफ्टर दिस टाइम फ्रेम देयर हैज बीन नो एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम लोकपाल. सो इट इज क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो काम सही से हो रहा है कि गलत? ठीक है? और जो प्रोसिक्यूशन विंग है, प्रोसिक्यूशन विंग मतलब वो विंग जो देखो प्रोसिक्यूट करना मतलब किसी को सजा देना किसी क्राइम के, आप उसका भी प्रोसिक्यूशन विंग है, यानी वो विंग जो सजा देता है. ठीक है? दिस विंग वाज नोटिफाइड इन जून 2025. आप सोचो, इसका एक्ट पास हुआ 2013 में, 12 साल पहले, और एक्ट पास होने के बाद 12 साल लग गए प्रोसिक्यूशन विंग बनाया. तो प्रोसिक्यूशन विंग ही नहीं होगा तो ये बीच में जितने भी कंप्लेंट्स आए उसमें प्रोसिक्यूट करेगा तो कोई है नहीं करने. ये बहुत केसेस में अलग दूसरे एजेंसीज पे डिपेंडेंट है. लोकपाल इज डिपेंडेंट ऑन मेनी एजेंसीज फॉर इंफॉर्मेशन एंड स्टफ लाइक सीबीआई, ईडी एंड सो ऑन. ठीक है? इससे क्या होता है, इसका ऑटोनॉमी कम होता है. ये बहुत सी चीजें खुद नहीं कर पाता, इसको दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, दूसरों के हेल्प के लिए, दूसरों के ओपिनियन के लिए. ठीक है? प्लस bureaucratic procedural errors lead to dismissal of many complaints. एक और प्रॉब्लम ये है कि ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, ये प्रोसीजर में कुछ एरर कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं. ठीक है? ढंग से प्रोसीजर करते नहीं, उनको प्रॉपर रीड या प्रूफ्स नहीं मिलते मैटर के, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, कंप्लेंट डिस्पोज हो जाता है, वो कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ता, वो कंप्लेंट क्लोज होता है. इट्स अनदर प्रॉब्लम. सबसे बड़ा थिंग रिसेंटली, जैसा कि मैंने कहा, टेंडर पास हुआ है कि लोकपाल को 7 BMWs मिलेंगे. सो द थिंग इज दैट व्हाट्स द नीड फॉर सच एक्स्ट्रा वेट्स. इसका काम तो नॉर्मल मारुति सिफ्ट हो सकता है, ब्रेजा का खरीदने में उससे काम हो जाएगा, बट BMW क्यों खरीदना है? व्हाट इज द नीड फॉर सच एक्स्ट्रा वेट्स? दैट इज अनदर, नॉट आई थिंक इट्स इशू, बट इट्स क्वेश्चन. इट्स क्वेश्चन. नाउ
Coming to the next topic, the central government has announced the Rashtriya Vigyan Puraskar for this year. 2025, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार या आरवीपी क्या है, ठीक है। अगर कोई आदमी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मतलब विज्ञान में बहुत अच्छा कुछ एक्सीलेंट काम करता है, then for such people for their achievements the government awards them with the राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। ये जो पुरस्कार है ये सबसे पहले प्रेजेंट कब हुआ था? इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द ईयर 2024। कहां पे प्रेजेंट हुआ था? इन द राष्ट्रपति भवन। क्यों? क्योंकि इसको प्रेजेंट करने वाला हमारा प्रेसिडेंट हुआ। हु इज द करंट प्रेसिडेंट? इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द फर्स्ट अवार्ड इन 2024 was presented by our current president श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एट द राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली, ठीक है। अब कितने अवार्ड्स होते हैं? 24 इंडिविजुअल अवार्ड्स, ठीक है, और 8 टीम अवार्ड, ठीक है। अब इस साल विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान रत्न अवार्ड किसको मिला है? द विज्ञान रत्न अवार्ड हैज बीन अवार्डेड टू जयंत ऋषि नार्लिकर। इट्स अ posthumous award. Posthumous मतलब he is no more with us anymore in his body form, but even after his death he has been awarded. अगर मैं कहता हूँ किसी को ये अवार्ड पोस्टमसली मिला है, इसका मतलब इनका देहांत हो चुका है, बट देहांत होने के बाद भी उनको ये अवार्ड दिया गया। सो इट्स अ पोस्टमस, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? हमारे पद्मा अवार्ड सिविलियन सर्विसेज के विज्ञान पुरस्कार इज नथिंग बट इट्स लाइक अ पद्मा अवार्ड which is given specifically for the field of science. पद्मा अवार्ड से बहुत चीजों के लिए मिलता है, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट्स, लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, बहुत कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर, देयर मेनी थिंग्स, बट दिस थिंग इज लाइक अ पद्मा अवार्ड बट ओनली फॉर साइंस, ठीक है। सो दिस इज द पर्सन श्री जयंत विष्णु नार्लिकर, ही रिसीव्ड द विज्ञान रत्न। अब जैसे पद्मा अवार्ड्स के टाइप्स होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। Similarly, विज्ञान पुरस्कार also has certain types. The first is the विज्ञान रत्न, the highest prize in the विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। विज्ञान रत्न is the highest honor and विज्ञान रत्न is given for some kind of lifetime achievement. Then there is विज्ञान श्री। विज्ञान श्री किसको देते हैं? अगर कोई है जिसने किसी एक साइंटिफिक ब्रांच में संबंधित बहुत कुछ अचीव किया, ये जानेगा that is विज्ञान श्री से। Then comes विज्ञान नंबर। Since scientists are aged 45 years से कम है and they have done something very excellent in innovation science, they are awarded basically for young scientists, they are awarded विज्ञान award and then the विज्ञान टीम award, ठीक है। This is collaborative achievement by 3+ scientists। मान लो 3 scientists ने मिलकर बढ़िया काम किया, रिसर्च किया, इनोवेशन किया, टेक्नोलॉजी बनाया, कुछ भी। In that case, they are awarded the विज्ञान टीम award, ठीक है। Now, who administered this award? It is administered by the राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी और आरवीपी कमेटी। आरवीपी कमेटी इस अवार्ड को एडमिनिस्टर करता है, डिसाइड करता है कि किसको मिलेगा, ठीक है। और आरवीपी कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है? इट इज चेयर्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होता है, दैट पर्सन, दैट ऑफिसर इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस आरवीपी, ठीक है। अब आरवीपी कमेटी अपने रिकमेंडेशंस बनाती है किसको अवार्ड मिलना चाहिए, और वो रिकमेंडेशंस फिर पास ओवर कर देती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक को। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक उसको अप्रूव करता है एंड दोस पीपल रिसीव क्रेडिट्स, ठीक है। अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो यार, जब हम साइंटिस्ट को अलग से रिकॉग्निशन देने लगेंगे ना, तो जो साइंटिफिक एक्सीलेंस है, साइंटिफिक इनोवेशन है, वो और ज्यादा प्रमोट होगी, ठीक है। ऊपर से हम एक आपने नोटिस किया होगा, देयर इज एन अवार्ड फॉर द विज्ञान युवा, मींस वी आर गिविंग एन अवार्ड टारगेटेड ओनली फॉर द यंग साइंटिस्ट। दिस विल एक्चुअली एनकरेज मोर यंग साइंटिस्ट टू डू मोर रिसर्च, ठीक है। और ये बहुत युवा को एक्चुअली एनकरेज भी करेगा टू गो इनटू द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। प्लस जो साइंस का फील्ड है ना, आई समटाइम्स फील लाइक दैट साइंस हैज
in many cases been underrated in India by the people of India. The way people celebrate music or arts or films or sports, science has, yeah, political politics. Science has always taken a backseat. But such awards will actually, generate a very unified respect and like a unified notion of excellence for the field of science. ठीक है? क्योंकि साइंस बोलने में इंडिया में बात इतना तक होता है कि बच्चों को 2 मिनट 11 में साइंस पढ़ाए उसके आगे साइंस के लिए कोई रिस्पेक्ट इंडिया में है फॉर रिसर्च डेवलपमेंट नो all they care about is either creating the JEE or the NEET and the concept of science ends there in India. At a higher level, there is no unified response or respect for science and technology as well. This is what will actually generate. ऊपर से global scientific leadership जो है उसमें इंडिया की एनर्जी और बेटर है अगर इंडिया रिकॉग्नाइजेस इट्स बेस्ट साइंटिस्ट एवरी ईयर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक द C2S मॉडल द C2S स्कीम मॉडल ठीक है इट इज गूगल एआई फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ठीक है गूगल ने एआई बनाया है फॉर बायोमेडिकल रिसर्च पर्पसेस इट इज नोन एज द C2S ठीक है ये आगे देखेंगे ठीक है इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है it has been developed under Google DeepMind and Google Research. ठीक है? It's also known as Gamma Open Models. ठीक है? This C2SK has been developed by Google DeepMind and Google Research. Or you can say the Gamma Open Models. ठीक है? So it is seven parameter foundation model designed to understand the language of cells. हमारे बॉडी में जो सेल्स computers understand only a certain language. ठीक है हमारे बॉडी में जो सेल्स how to interpret the world this is a biomedical model right if you have to study biology you have to study the cells of the body so if you are studying the cells of the body ठीक है तो computer has to first understand the working of a cell in its own language. So for the computer to understand the working of a cell in its own language, it has been given a 27 billion parameter foundation. मतलब उसको मॉडल किया गया है उस AI में. That model has around 27 billion parameters जिसको स्टडी करके या रीड करके वो AI में रिजल्ट दे सकता है और समझ सकता है कि बॉडी का सेल कैसे काम है ठीक है इसका और काम क्या है एनालाइज वास्ट बायोलॉजिकल पेशेंट डेटा सेट्स टू फाइंड न्यू थेरेप्यूटिक इंसाइट्स ठीक है मतलब दुनिया में बहुत सारे पेशेंट्स हैं अलग अलग बीमारियों के अलग अलग देशों से अलग अलग एज ग्रुप्स के अलग अलग सेक्सेस के अलग अलग सिटीज के देयर आर मेनी डिफरेंसेस तो बहुत सारे पेशेंट्स का डेटा सेट बनाता है एक बायोलॉजिकल डेटा सेट और उसको प्रॉपर्ली स्टडी करता है so that we can find out new therapeutics मतलब ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कोई नया इंसाइट या नया टेक्नोलॉजी मिलेगी ठीक है then propose new use of stimulatory CX4945 for early stage tumor immune response enhancement हमारे बॉडी में जब ट्यूमर होता है तो अगर ट्यूमर को अर्ली स्टेज में ही हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम ने डिटेक्ट करके मार दिया and we will never have cancer. This model has actually proposed the use of a new drug. इस मॉडल में पूरे डिजीज को ट्यूमर को स्टडी करके एक नए ड्रग का यूज प्रपोज किया कि ये ड्रग यूज करोगे तो हो सकता है कि अर्ली स्टेज में ही ट्यूमर को मार दिया जाए by the immune system of the body. What is this drug? It's called stimulatory. Composition by CX4945. ठीक है Now, what is the significance of the C2SK model? It will revolutionize drug discovery. क्योंकि ड्रग डिस्कवरी क्या होता है यू फाइंड आउट अ ड्रग फॉर अ डिजीज के नया ड्रग डिस्कवर करना है वो किसी नए डिजीज के जिसका ड्रग है नहीं या फिर कोई पुराना डिजीज है जिसका ड्रग है नहीं तो वो डिजीज का ड्रग ढूंढ रहा है अब ये ड्रग ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम हो रहा है एक्चुअली यू हैव टू रन अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल्स millions of different and then you arrive at the drug. It takes a lot of time.
जब तक एक बीमारी का ड्रग बनता है तब तक वो बीमारी बहुतों का जिंदगी खत्म इसे मिलता है नहीं। बट अगर एआई काम करेगी, एआई एक very huge data and in a very less time, AI can actually come up with a solution and discover a drug or propose a drug for a disease. काम बहुत इसी जगह जाने बच्चे हैं। It also demonstrates AI's potential as a co-researcher in life science. देखो अब some co-researcher means main researchers हम ही रहेंगे because research is not possible without human intervention है। वो जो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो इंसान ही कर सकता है। एआई इतना ही कर पाएगा जितना आपको सिखाया है। इंसान ही है जो अपनी लिमिट्स को पार जाके अपना काम निकाल सकता है। So with but now along with humans, AI can be like a co-research life science जो हमें हेल्प कर पाए to find out the solutions to many biological problems. ठीक है? ये डेटा साइंस और बायोलॉजी को बहुत पढ़ना से लगा है क्योंकि एआई का एक तरह का डेटा साइंस इस से काम करना ठीक है तो बहुत बड़ा सकता है क्योंकि अब हम डेटा साइंस को बायोलॉजी में इंटीग्रेट करके रिसर्च को बहुत फास्ट बना रहे हैं एंड इट विल बी न्यू मेथड ऑफ रिसर्च दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम नाउ। अब इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है देखो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं कंप्यूटर में अब ये लोग अगर इनको एआई में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमें अलग से प्रोग्रामिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बिना किसी बाहर के प्रोग्रामिंग के ही बायोलॉजी सीखने स्केल से सीख लेंगे कि बायोलॉजी में कैसे कहाँ क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, कौन से प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है और वो फिगर आउट करता है कि हम करना है। ठीक है और तो एक क्रॉस डिसिप्लिनरी एआई यूज बिकॉज़ एआई is used mostly for data science एक डिसिप्लिन but biology is a completely different discipline. But using AI and the C2 scale will actually make AI a cross disciplinary item क्योंकि वो डेटा साइंस और बायोलॉजी दो अलग डिसिप्लिन में एक साथ एक ही टाइम में काम करता है। सो दैट एक्चुअली शोज हाउ पावरफुल एआई इज। ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखो आपको मैथमेटिक्स चाहिए बिकॉज यू आर स्टडीइंग डेटा और डेटा उसे कुछ निकालने के लिए मैथ्स चाहिए होगा। यू नीड बायोलॉजी आल्सो इफ यू नीड द मेडिसिन एंड यू नीड फिजिक्स आल्सो टू सम एक्सटेंट। ठीक है तो इतना सब कुछ एआई एक बार में कर रहा है। कुछ डिबेट भी है जैसे कि यार एआई को हम इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं इवन जो चीजें प्योरली ह्यूमन करता था पहले उसमें भी एआई को देख के आ गया कि ह्यूमन डिस्कवर करता है आपकी इनपुट डिस्कवर। सो इट रेजेस क्वेश्चंस कि इसका एथिकल लिमिट क्या है। कुछ तो एथिक्स होना चाहिए ना भाई कुछ का आप खुद करो एआई के हाथ में तुम कितना पावर दे रहे हो। सो इट रेजेस द क्वेश्चन कि एआई के हाथ में कितना पावर हम दे सकते। ठीक है और दिस विल ले द ग्राउंड वर्क फॉर एआई इन हेल्थ केयर क्योंकि अभी ये धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है बट इन फ्यूचर एआई कैन बी कंप्लीटली इंक्लूडिंग biomedical research, drug discovery, patient treatment is healthcare, isn't it? In future, AI can now later on be integrated in basic healthcare. ठीक है? So, I guess yeah, that will be it for today's class on current affairs. I hope it was a very helpful session. Time to go to the video more than once if you want. Clear your concepts. Have a good time preparation for preparing for your exams and be sincere. Please have a good day. Jai Hind.